Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों, don't you think that SST is really a lot of help for us? Because SST की वजह से हमें अलग अलग चीज़ों की information मिलती है. अलग अलग चीज़ें एज इन कंट्रीज़ हो गए, सिटीज़ हो गए, civic senses हो गई, history हो गया. There are so many things that are covered up under SST. So let's talk about our country India. Okay, और जानते हैं हमारी country के बारे में. Alright, in this chapter we are going to learn about the location. We are going to talk about the neighbors of India. We are going to talk about the natural features or physical features, and we are going to talk about the political divisions. So सबसे पहले we'll start with the location. Our country India is a part of the Asia continent. As we all know, there are 7 continents. So सबसे बड़ा continent कौन सा है? Asia. So India is a part of this continent called Asia. It is located in the southern part of the continent. India is the most populous country globally, with a population exceeding 142 crores as of 2023. India ranks number 1 in the list of countries by population. India is also the 7th largest nation. Its area is 3,287,263 square kilometers. Okay, so let's begin with the location. Our country India is a part of the Asia continent. जैसे कि हम सबको पता है कि there are 7 continents. So उसमें से सबसे बड़ा continent कौन सा है? Asia. उसका part है India. Okay. So it is located at the southern part of the continent. India is the most populous country globally, with a population exceeding 142 crores as of 2023. So इसके पहले था China. Now India is number 1 with regards to the population. Okay, India ranks number 1 in the list of countries by population. It is also the 7th largest nation. Its area is 32,87,263 square kilometers. It is a peninsula land surrounded by the ocean on 3 sides. So India जो है वो एक peninsula land है और उसके side में तीनों side पे क्या है? Oceans है. Okay, it is surrounded by oceans. Okay, the southeast of our country, okay, is bordered by the Bay of Bengal. So southeast में कौन सा आता है? Bay of Bengal. So that sea comes there. Okay, the southwest में क्या आ रहा है? Arabian Sea आती है. Okay, and south में आती है Indian Ocean. So in the north it is guarded by the Himalayas. North में क्या है? Mountains है, which are the Himalayan mountain ranges. Okay, the higher peaks of the Himalayas, they are covered with snow. So Himalayas के जो higher peaks जो है वो they are all covered with snow. Okay, so we are actually a part in the Asia, we are a part of the Asian continent और हम लोग एशिया के साउथ में आते हैं. Towards the south, we are at the southern part of the continent और number 1 in population with regards to population. और हमारे तीनों साइड पे we are a peninsula जिसके तीनों साइड पे there are different oceans, okay, और seas. और ऊपर नॉर्थ में आते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज. Now many rivers flow down from there. Many rivers, बहुत सी नदियाँ हिमालय से बहती है. Okay, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रवि, चेनाब, व्यास. There are some rivers that flow throughout the year. Okay, continuously पूरे साल उनका पानी बहता रहता है. Okay, they originate from the glaciers in the Himalayas. Glaciers क्या होते हैं? Glaciers is when the snow melts. Okay, वो बन जाते ग्लेशियर्स. सो उन ग्लेशियर्स में से हिमालयास के थ्रू पानी इन नदियों में बहता है. दीज रिवर्स फॉर्म वास्ट फर्टाइल प्लेन्स इन नॉर्दर्न इंडिया. ओके, नाउ इन रिवर्स की वजह से, पानी की वजह से बहुत सारी जो नॉर्थ के रीजन्स है, फ्लैट एरियाज जो है, प्लेन्स, ओके, दे आर वेरी फर्टाइल. ओके, विच प्रोड्यूस अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड ग्रेन्स. और इसकी वजह से वहाँ पे खेती बहुत हाई स्केल पे होती है. Okay, now
लेट्स टॉक अबाउट द नेबर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करते हैं. सो मैनी कंट्रीज दे शेयर बॉर्डर्स, okay, land borders with India. The neighboring countries of India are China, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Afghanistan, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. Pakistan and Afghanistan are to the northwest. China is to the north and northeast. Nepal and Bhutan are to the north. Bangladesh and Myanmar are to the east. Sri Lanka and Maldives are to the south of our country. सो हमारे नेबर्स में आ जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज़, जैसे कि चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. तो इनकी लोकेशन क्या है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट. ओके, चाइना नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में है. नेपाल एंड भूटान कहाँ पे है? टुवर्ड्स द नॉर्थ, ऊपर वाले हिस्से में. ओके, बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट में आ जाते हैं. दे आर द नेबर्स टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया. श्रीलंका एंड मालदीव्स दे आर टुवर्ड्स द साउथ. ओके, नीचे डाउन साउथ ऑफ इंडिया. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल फीचर्स और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. द लैंड surface of India varies from place to place. At some places there are high mountains, while at some other places there are big plains. Some parts have big lakes, rivers and thick forest, while some parts have dry sand only. Area of land which has similar features is called a natural region. So, India में आप देखोगे कि wide variety है. Okay, there are mountains, there are plains, there are lakes, there are rivers, there are forest, there is desert. So, अगर आप देखोगे तो there are there are mountains which are like really high, फिर बहुत बड़े बड़े plains भी हैं, lakes, rivers, thick forest हो गए, dry sand हो गया. So ये जो areas होते हैं जहाँ के similar features होते हैं उन्हें कहा जाता है natural region. So due to dissimilarity in natural formation, India has various types of climate. So natural regions पूरी इंडिया में सेम नहीं है, सब कहाँ पे अलग है, कहीं पे अलग है. तो इसकी वजह से क्लाइमेट भी अलग अलग जगहों पे चेंज हो जाता है. ओके, सो इन मौसिनराम विच इज एट चेरापूंजी देयर इज टू मच रेन. सो चेरापूंजी कहाँ पे आया? मेघालय की तरफ आया. ओके, तो वहाँ पे बहुत बारिश होती है. बट ऑन द अदर हैंड द डेजर्ट ऑफ थार कहाँ पे है ये? इट इज इन राजस्थान. डेजर्ट ऑफ थार इन राजस्थान इज डिप्राइव्ड ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती. ओके, नाउ इट्स नॉर्दर्न माउंटेनियस एरिया. नॉर्थ की तरफ जो माउंटेनियस एरिया है, इट इज कवर्ड विथ स्नो इन विंटर्स एंड इट इज टू कोल्ड. whereas the northern plains, they are too hot in summer and cold in winter. So वहाँ पे नॉर्दर्न साइड में आप देखोगे तो गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और ठंड में बहुत ठंड होती है. ओके, सो इंडिया को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 6 मेन रीजन्स. ओके, अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल फीचर्स. तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स के हिसाब से हम इंडिया को 6 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, देन यू हैव द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स जहाँ पे काफ़ी हद तक क्रॉप्स ग्रो होते हैं, फार्मिंग की जाती है. इंडियन डेजर्ट, ओके, द सदर्न प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. ओके, so let's talk about the northern mountains first. So इसमें क्या आता है? The Himalayas, they form the northern border of India and are the highest mountain range in the world. Many mountains in this range are covered with snow throughout the year. So northern mountains में आ जाते हैं Himalayas, और ये Himalayas जो है northern border of India पे है and they are the highest mountain range in the world. सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया में. ओके, और यहाँ पे आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द माउंटेन रेंज जो है वो स्नो से कवर्ड है. ओके, और पूरे साल वहाँ पे स्नोफॉल होती है. फिर आते हैं नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स. नाउ द फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड्स दैट लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स आर द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स. मतलब हिमालयन माउंटेन्स के नीचे वाला हिस्सा.
नॉर्थ का नीचे वाला हिस्सा, ओके, इट इज़ नोन एज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स. द रिवर्स विच कम फ्रॉम द हिमालय फ्लो थ्रू द प्लेन्स एंड मेक देम फर्टाइल. तो जो रिवर्स जो ग्लेशियर्स की वजह से फॉर्म होती है और नीचे आती है एंड दे फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, उसकी वजह से जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ओके, जो फ्लैट एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स वाला, जो फ्लैट एरिया होता है नॉर्थ साइड वाला, वो काफ़ी फर्टाइल है and which is very friendly for growing crops. Okay, now comes the Indian desert, the dry and sandy area in the northwestern part of India is the great Indian desert, which is called the Thar desert. So towards the northwest of India है, वहाँ पे है dry और sandy area, बहुत सारा ड्राई एरिया है, रेगिस्तान है वो इंडिया का, उसको कहलाते हैं थार डेजर्ट. ओके, इट्स टुवर्ड्स द राजस्थान साइड. नाउ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सदर्न प्लेटूज. द प्लेटू रीजन ऑफ आवर कंट्री इज ट्रायंगुलर इन शेप. Okay, it lies to the south of the northern plains and extends to Kanyakumari. The plateau is also called the table land. So ये जो प्लेटूज जो होते हैं वो थोड़े से ऊंचे होते हैं इलाके. ओके, सो जैसे प्लेन्स है दे आर लाइक टोटली फ्लैट. ओके, प्लेटूज आर अ लिटिल रेज्ड एरियाज ऑफ द रीजन. ओके, तो ये जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और ये जनरली दीज प्लेटूज आर फाउंड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में आ जाते हैं, नीचे वाले हिस्से में आ जाते हैं एंड दे एक्सटेंडेड अंटिल कन्याकुमारी. ओके, प्लेट्यूज को टेबल लैंड भी कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. The coastal plains occupy the land between the Western Ghats and the Arabian Sea in the west, and the land between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal in the east. So, coastal plains मतलब जो the areas which are towards the sea coast. So, the coastal plains, okay, which are between the Western Ghats and the Arabian Sea. Western Ghats और Arabian Sea के बीच में जो coastal plains आते हैं वो east की तरफ है और लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट. ओके, तो आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो आपको देखेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑन द लेफ्ट ऑल्सो एंड ऑन द राइट साइड ऑल्सो. ओके, सो दीज आर ऑल द कोस्टल प्लेन्स. सो कोस्ट के साथ में जो लगे हुए एरियाज हैं उनको कहलाते हैं कोस्टल प्लेन्स. नाउ आइलैंड्स. देयर आर आइलैंड चेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. The island located in the Bay of Bengal are the Andaman and Nicobar Islands, and situated in the Arabian Sea are the Lakshadweep Island. So आप इंडियन पेनिनसुला को देखोगे तो उसके नीचे वाले हिस्से में दोनों साइड पे ओके देयर आर आइलैंड्स. सो बे ऑफ बंगाल की तरफ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच आर वेरी क्लोजर फ्रॉम द चेन्नई साइड, एंड द अदर वन विच इज द अरेबियन सी में जो है वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स. ओके, so the different states of India have different land forms. So अलग अलग states के अलग अलग land forms होते हैं. So there are people who reside, okay, and they have reside मतलब there are lot of people who are settled there, okay, and उनके अलग अलग creeds होते हैं, caste होते हैं, they speak different languages. अगर हमारे country में देखोगे तो अपने कंट्री में देर आर ऑलमोस्ट इन इंडिया पीपल स्पीक ऑलमोस्ट 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, देर आर पीपल हु ड्रेस अप इन अ डिफरेंट मैनर. देर आर पीपल हु लुक अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, मे बी नॉट द this thing, their features are different from each other. That is because of the areas that they are in. Okay, so but end of the day हम लोग सारे कौन हैं? We all are Indians. हम सारे भारतीय. We belong to one nation called India. Okay, so we are all sons and daughters of India. We all love and respect it. तो ये हो गया फिजिकल फीचर्स के बारे में ऑफ इंडिया में. वी वर टॉकिंग अबाउट द प्लेन्स एंड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स एंड ऑल. अब आते हैं पॉलिटिकल डिवीजन में. तो अगर आप देखोगे इंडिया में देर आर मैनी स्टेट्स. ओके, अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज है. So let's look at that in detail now. India is divided into 28 states and 8 union territories. So India में 28 states है और 8 union territories है.
okay, which includes the National Capital Territory, which is the NCT of Delhi. Each state and union territory has its own capital. So जैसे इंडिया का एक कैपिटल है विच इज़ न्यू दिल्ली, वैसे ही हर स्टेट जो आती है इंडिया की उनके अपने अपने कैपिटल्स हैं. ओके, नाउ द 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं 7 स्टेट्स, उनको कहलाते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया. Okay, these 7 states which lie towards the northeast of India, they are known as the 7 sisters of India. These are Meghalaya, Assam, Mizoram, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland and Tripura. There are more than 1 billion people in India. They belong to different regions, tribes and races. So India में बिलियन के ऊपर लोग हैं और जो सब लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्राइब्स के हैं, अलग अलग रेसेस के हैं. ओके, उनके कास्ट, कम्युनिटी सब कुछ अलग है. ओके, नाउ डू यू नो राजस्थान जो है इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ओके, एरिया वाइज राजस्थान का जो एरिया है सबसे बड़ा है और गोवा इज़ वेरी स्मॉल. Okay, चलो now let's go through the different states of India and union territories of India और जानते हैं उनके कैपिटल्स क्या है. आंध्र प्रदेश कैपिटल है अमरावती. आसाम कैपिटल इज दिसपुर. ओके, आंध्र प्रदेश अर्लियर वाज ओनली आंध्र प्रदेश और उसका कैपिटल होता था हैदराबाद. नाउ आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया है इन 2 पार्ट्स विच इज़ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. सो आंध्र प्रदेश की अभी नई कैपिटल है, नई राजधानी है अमरावती. ओके, आसाम दिसपुर, छत्तीसगढ़ इज़ रायपुर, गुजरात इज़ गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश इज़ शिमला, झारखंड इज़ रांची, केरला इज़ थिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र इज़ मुंबई, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, पंजाब चंडीगढ़, सिक्किम गैंगटॉक, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून. ओके, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल इज ईटानगर, बिहार की राजधानी है पटना, गोवा इज पणजी, हरियाणा इज चंडीगढ़, कर्नाटका इज बेंगलुरु, मध्य प्रदेश इज भोपाल, मणिपुर इज इम्फाल, मिजोरम इज ओइजोल. ओके, उड़ीसा इज भुवनेश्वर, राजस्थान इज जयपुर, तमिलनाडु इज चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश इज लखनऊ एंड वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज. ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. चंडीगढ़ इज द कैपिटल. दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव इनका कैपिटल है दमन. लक्षद्वीप कावराट्टी. National Capital Territory of Delhi, New Delhi is the capital. पुदुचेरी का कैपिटल है पुदुचेरी itself. जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर एंड लद्दाख का कैपिटल है लेह. सो इंडिया जो है इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मतलब जो सरकार है इंडिया की, ओके, इट वर्क्स ओके फॉर द पीपल, लोगों के लिए काम करती है. ओके, इट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल. इस सरकार को कौन सिलेक्ट करता है? पीपल सिलेक्ट. ओके, इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है एंड देन दे चूज देयर लीडर्स. ओके, एंड इट वर्क्स फॉर द पीपल. ओके, सो इट इज़ ऑफ द पीपल. लोगों से बनी है ये सरकार. ओके, और इनको चूज़ किया है लोगों ने ही एंड दे वर्क फॉर द पीपल ओनली एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के वेलफेयर के लिए सब लोग मिलके काम करते हैं एंड वी चूज़ कि कौन है जो हमारी मदद कर सकता है, जो गवर्नमेंट में आ सकता है एंड दे विल हेल्प द गवर्नमेंट टू रन वेल. और हमारे स्टेट के लिए और हमारे कंट्री के लिए ओवरऑल दे कैन हेल्प इट टू ग्रो एंड डेवलप. Okay, now our country is progressing in every field and is fast emerging as a very strong nation. So हमारा जो देश है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है.
हर फील्ड में तरक्की कर रहा है. ओके, वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया. जो चीज़ें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें इंडिया में बनने लगी है. जैसे जब कोविड आया था तभी भी कोविड का वैक्सीन बन गया था इंडिया में. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. ओके, वी हैव सो मेनी टैलेंटेड पीपल इन इंडिया हु आर वर्किंग टूवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. चलो अब देखते हैं इस चैप्टर में हमने कौन से नए नए वर्ड सीखे थ्रू द ग्लॉसरी. हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ अ स्फीयर. एक सर्कल का जो हाफ होता है उसको कहलाते हैं हेमिस्फीयर. पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट 3 sides surrounded by water. Glacier is a slowly moving mass or river of snow. Okay, जो स्नो मेल्ट होके जो रिवर में फॉर्म हो जाता है और धीरे धीरे मूव करके नीचे आता है, वो होते हैं ग्लेशियर्स. ओके, नाउ लेट्स डू अ क्विक रन थ्रू ऑफ द चैप्टर. समरी. आवर कंट्री इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया मेजर्स 32,87,263 square kilometers. There are 28 states and 8 union territories in India. Rajasthan is the largest and Goa is the smallest state of our country area-wise. India is a democratic country. The 7 states in northeastern India are called 7 sisters of India. Alright, so now it's time to do the exercises quickly. Chalo, take the correct option. In which continent is India located? Asia, Africa or Europe? It is located in B, Asia. Which is the smallest state in area? मिज़ोरम, गोवा और हरियाणा. स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28, 29 और 27? देयर आर 28 states. The Himalayas are the range of forest, mountains or islands. हिमालय क्या है? पहाड़, mountains. Okay, fill in the blanks. India is the 7th largest nation. 7 states in northeastern India are called the 7 sisters. India is a democratic country. Goa is the smallest state of India and the Bay of Bengal is in the east of India. Alright, now true or false? India is surrounded by the sea from 3 sides. Absolutely true. That is why India क्या है? Peninsula है. Okay, India has 30 states. False. India कितने states है? 28 states है. Our neighboring countries are China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, etc. Absolutely true. Andaman and Nicobar Islands are in the Arabian Sea. नहीं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है. अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड्स. ओके, नाउ मैच द कॉलम्स. प्लेटू. प्लेटू मतलब इट इज अ टेबल लैंड. ओके, प्लेन्स आर फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड. डेजर्ट इज थार डेजर्ट. इंडिया का रेगिस्तान कौन सा है? द थार. आइलैंड्स मीन्स द this thing. Lakshadweep is an island. Okay, and Himalayas are where? They are the mountain range towards the north of India. Okay, now children quickly reread the chapter and start answering these questions in your own word. Okay, जैसे आपको इंडिया का लोकेशन बताना है. Okay, जो डिस्क्राइब करना है कि इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट पे है, टूवर्ड्स विच साइड, साउथ में है या कहाँ पे है, वो सब बताना है आपको. ओके, उसके एरिया कितनी है. ऑलराइट, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज इंडिया डिवाइडेड इनटू? इंडिया के कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज है. फिर आपको बताना है मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. जो 6 डिविजन्स ऑफ इंडिया कौन से रीजन में है, जैसे नदर्न प्लेन्स हो गए, सदर्न प्लेटू हो गया, डेजर्ट हो गया, ऐसे ही आपको पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना है. ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया पॉलिटिकली? पॉलिटिकली इंडिया क्या है? इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी का, वो आपको यहाँ पे बताना है. ओके, राइट द नेम्स ऑफ 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. 5 नेबर्स इंडिया के जो है उन कंट्रीज का आपको नाम बताना है. ऑलराइट, नाउ लेट्स एनहांस योर नॉलेज थ्रू द हॉट्स. ओके, व्हाई इज चंडीगढ़ द कैपिटल ऑफ बोथ हरियाणा एंड पंजाब? ओके, आपको फाइंड आउट करना है कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ क्यों है.
Okay, you can either take help of your elders or collect information from the internet. Activity time. Collect the information about Jammu and Kashmir from internet. आपको जम्मू एंड कश्मीर की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है फ्रॉम द इंटरनेट. अभी आपको प्रोजेक्ट करना है जहाँ पे आप इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप अलग अलग जगहों को ओके मार्क करोगे, जैसे श्रीलंका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश को. ओके और फिर लाइफ स्किल्स में यू विल राइट अ स्मॉल पोएम ऑन द ग्रेटनेस ऑफ आवर मदरलैंड इंडिया. सो ऐसी क्या खूबियाँ हैं इंडिया में, उसके बारे में आप एक छोटी सी पोएम लिख के सबको सुनाओगे. Alright children, so before you get on to this activity, quickly reread the chapter and finish all the exercises. Get going.